नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही दिन भर की खबरें, ये जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में बीमारियों पर काबू पाने के लिए बुलाई गई तत्कालीन बैठक। मेयर केयूर रोकड़िया की अगुवाई में अधिकारियों को दी गई सूचनाएं। बड़ौदा डेयरी की 64वीं साधारण सभा हुई वर्चुअली आयोजित। सभासदों ने मंडली के हर फैसले में दिखाई सहमति। 17 सितंबर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर में किया जाएगा फ्लैग मार्च का आयोजन। शहर पुलिस, शी टीम, ट्रैफिक, महिला पुलिस और राइफल क्लब की महिलाएं करेंगी फ्लैग मार्च। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बीते कई वक्त से वडोदरा शहर में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही है। गंदे पानी और मच्छरों के आतंक की वजह से शहर में बीमारियों के केस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज शहर के सर सयाजीराव नगर गृह में मेयर केयूर रोकड़िया की अगुवाई में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मेयर केयूर रोकड़िया समेत डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी और म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल की भी उपस्थिति रही। इस बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को बीमारियों के सामने लड़ने के लिए ज़रूरी सूचनाएं दी गई। आज एमपीएचडब्ल्यू, पीएचडब्ल्यू, मेडिकल ऑफिसर लेवलना તમામ અધિકારીઓની બેઠક, મોટી સંખ્યામાં અધિકારીઓ પણ શહેરના ઉપસ્થિત રહ્યા છે। એ રીતે બેઠક આજે લેવામાં આવી છે। જે રીતે છેલ્લા કેટલાક દિવસોની અંદર વરસાદની પહેલાં અને વરસાદ પછી પણ વેક્ટર બોર્ન ડિસીઝ કહેવાય, વાહકજન્ય રોગ કહેવાય, જે મચ્છરના કારણે થતા હોય છે, એમાં ચિંતાજનક વધારો થયો છે। ત્યારે તંત્રની કામગીરીની સમીક્ષા બેઠક એક આજે રાખવામાં આવી હતી। સૌથી પહેલી વાત તો હું તંત્રને અભિનંદન આપીશ કે જે ગંદા પાણીના મચ્છર છે, જેના કારણે મેલેરિયા અને અન્ય રોગો થતા હોય છે, એમાં ઘણો મોટો ઘટાડો શહેરની અંદર આવ્યો છે। એટલે વરસાદી કાંસની સફાઈ એ તંત્રએ યોગ્ય દિશામાં કરી હોય એવું સ્થાપિત થાય છે। પરંતુ એની સાથે વાહકજન્ય રોગો એટલે કે ડેન્ગ્યુ અને ચિકનગુનિયાના કેસીસમાં વધારો પણ જોવા મળી રહ્યો છે। હજુ 2019ની સરખામણીમાં જો આંકડા જોઈએ તો આપણે 2019ની સરખામણીમાં જ ડેન્ગ્યુ કદાચ થોડા ઓછા કેસ છે અને ચિકનગુનિયા થોડાક વધારે કેસ છે। આ દિશાની અંદર તંત્ર હાલમાં આંકડાઓ દેખાય છે। ત્યારે આ તમામ અહીં ઉપસ્થિત કર્મચારીઓ છે એને માર્ગદર્શન પણ મળે, એમની જે તકલીફો છે એ પણ અમને ખબર પડે, કયા કયા સેક્ટરની અંદર કામ કરવું જોઈએ એ દિશાની અંદર કેટલાક સૂચનો પણ એમને આપવામાં આવ્યા છે। જે ઘરોની અંદર અને આપણા માધ્યમથી પણ હું દરેક નગરજનોને અપીલ કરું છું કે આ જે ચિકનગુનિયા અને ડેન્ગ્યુના રોગ છે એ સ્વચ્છ પાણીમાં થતા રોગ છે। ત્યારે આપણા ઘરની અંદર પણ આ સ્વચ્છ પાણી, વરસાદનું પાણી ન ભરાઈ રહે એની આપ સૌએ ચિંતા કરવાની છે। અને આના ઉત્પત્તિ સ્થાન પણ ક્યાંક કુંડામાં ભરાઈ રહેતું પાણી છે, ફ્રીજની પાછળ અંદરની ટ્રેમાં ભરાઈ રહેતું પાણી છે, ક્યાંક અગાસીની અંદર મૂકેલા કુંડા, અગાસીની અંદર ઉછેરાયેલા છોડ અથવા અગાસીની અંદર પડેલા કોઈપણ પાત્રો અથવા વાસણોની અંદર ભરાઈ રહેતું પાણી છે। આ તમામ પાણીનો નિકાલ દરેક વરસાદ પછી દરેક નગરજન પોતાના ઘરની અંદર, પોતાની આસપાસ જો ઘરની બહાર પણ પાણી ભરાઈ રહેતું હોય તો એ પણ સ્પ્રેડ કરીને આ પાણીનો નિકાલ થાય એ દિશાની અંદર સતર્ક રહેવું જોઈએ। જે કદાચ રોડ પર પાણી ભરાઈ રહે છે તો આ રોડ પર પાણીને હટાવવા માટે, એને સ્પ્રેડ કરવા માટે પણ અમે તંત્રને આજે સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટરો, વોર્ડ ઓફિસરોને પણ અલગ મિટિંગમાં સૂચના આપી છે। અને એના સિવાય જે કોમન પ્લોટ્સ અથવા મોટા પ્લોટ્સ છે એની અંદર જો પાણી ભરાઈ રહે છે તો ત્યાં યોગ્ય એમએલઓ કે એની રિલેટેડ દવાઓનો છંટકાવ થાય। દરેક વરસાદ પછી ખાબોચિયામાં ભરાઈ રહેતા પાણીમાં પણ દવાનો છંટકાવ થાય અને મચ્છરોનો ઉપદ્રવ ત્યાં ઘટે એ દિશાની અંદર સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। गणेश महोत्सव को शुरू हुए 6 दिन हो चुके हैं और अब धीरे धीरे गणेश जी का विसर्जन भी किया जा रहा है। ऐसे में अब पुलिस की ओर से पार्किंग और डाइवर्जन के मुद्दे को लेकर घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसके चलते विसर्जन के दौरान ट्रैफिक की कोई भी समस्या खड़ी ना हो। गणेश उत्सव को लेकर शहर में निकलने वाली विसर्जन यात्रा में किसी भी तरह की असुविधा खड़ी न हो, इस आशय से ट्रैफिक पुलिस की ओर से
पार्किंग और नो एंट्री का घोषणा पत्र घोषित किया गया है। गणेश जी के विसर्जन के अंतिम दिन तक होने वाले विसर्जन के चलते नागरिकों को असुविधा ना हो, इसीलिए नो पार्किंग, नो एंट्री, डाइवर्जन और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। 16 सितंबर से 19 सितंबर सुबह के 9 बजे से विसर्जन खत्म होने तक ये घोषणा पत्र जारी रहेगा। शहर के 4 दरवाज़ा इलाका लहरीपुरा दरवाजे से रावपुरा रोड, मार्केट रोड, डांडिया बाजार रोड समेत नवलखी मैदान की ओर आने वाले सभी मार्गों को पार्किंग जोन की जगह नो पार्किंग जोन जाहिर कर दिया गया है। इसके साथ ही कृत्रिम तालाब की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर वाहनों के लिए नो एंट्री जाहिर कर दी गई है। ચાલુ વખતમાં કોવિડ ગાઈડલાઇનને કારણે ઘણા ગણપતિના મંડળોએ પોતે સ્વૈચ્છિક રીતે એ જે પોતાના મંડળના ગણપતિ છે એ પોતાના સ્થળ પર વિસર્જન કરવા માટે બધા સહમત થયા છે અને ભક્તિભાવથી એ લોકો પોતાના સ્થળ પર પણ કેટલાક ગણપતિઓ જે છે બાયચાન્સ નીકળશે તો એ લોકો માટે અહીંયા ન્યાય મંદિરથી લઈને છેક નવલખી સુધી અમે લોકોએ ટ્રાફિકનું વાહનોની અવરજવર બંધ રાખી છે તે દિવસ પૂરતું, એટલે સ્પેસિફિક નોટિફિકેશન એનું કમિશનર સાહેબ તરફથી બહાર પાડવામાં આવશે જ। પરંતુ આ રૂટ પર મોટે ભાગે જેટલી નવલખી તરફ જવાના જે વિસર્જન કરવા માટેના જે ગણપતિ મંડળો જશે એ તમામ માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને એના માટે બીજા એ સિવાયના જે વ્હીકલો છે, વિસર્જન યાત્રા સિવાયના જેટલા વ્હીકલો છે એ લોકો માટે અહીંયાથી આ અવરજવર પ્રતિબંધ મૂકવા માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવશે। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उसी दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाने वाला है। उसी के भाग स्वरूप शहर में महिला पुलिस और शी टीम की ओर से फ्लैग मार्च का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं उपस्थित रहकर स्वच्छता और जन जागृति का संदेश देगी। 17 सितंबर को आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग स्वरूप फ्लैग मार्च शहर के लालकोट शहीद भगत सिंह चौक से डांडिया बाजार होकर गांधीनगर गृह तक आयोजित होगी। गांधीनगर गृह पर ये फ्लैग मार्च संपन्न होगी। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य स्वच्छता और लोक जागृति का रहेगा। आपको ये भी बता दें कि ये फ्लैग मार्च पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह के मार्गदर्शन के तहत आयोजित होगी और महिला पुलिस, शी टीम, ट्रैफिक महिला पुलिस, होमगार्ड और राइफल क्लब ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं की ओर से ये फ्लैग मार्च आयोजित की जाएगी। राइफल ट्रेनिंग में आने वाले रजवाड़ी परिवार की महिलाओं समेत डॉक्टर महिलाएं भी इस फ्लैग मार्च में जुड़ेगी। इस मामले में एसीपी एसजी पाटिल साहब की ओर से ज़्यादा जानकारी दी गई है। केंद्रीय सरकार तरफથી આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી થઈ રહી છે અત્યારે આખા દેશની અંદર। આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા થવાને ઉપલક્ષમાં જે થાય છે તો વડોદરા સિટી તરફથી પણ એક 17 તારીખે પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એ કાર્યક્રમ મુજબ ન્યાય મંદિર વીર ભગતસિંહ ચોક છે ત્યાંથી એક રેલી માર્ચ ફ્લેગ માર્ચ શરૂ કરવાના છે અમે લોકો અને દરેક અલગ અલગ પ્લાટૂન્સ છે જે પ્લાટૂનની અંદર પોલીસ હેડક્વાર્ટરના છે, પોલીસ છે, પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ છે, ટ્રાફિક છે, ટીઆરબી છે, હોમગાર્ડ્સ છે, મહિલાનો પ્લાટૂન્સ છે, સી ટીમ છે, ઉપરાંત પ્રાઇવેટ જે હથિયારોની તાલીમ લઈ રહી છે મહિલાઓ હેડક્વાર્ટરની અંદર પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં એ તમામ મહિલાઓ પણ આની અંદર ટ્રેડિશનલ ડ્રેસની અંદર જોડાવાની છે। અમારો હેતુ એવો છે કે લોકો જે છે એ તમામ સ્વચ્છતા પ્રત્યે, એકતા પ્રત્યે, શાંતિ પ્રત્યે, કોમી શાંતિ પ્રત્યે બધા જાગૃત થાય અને બધા એક થાય, લો એન્ડ ઓર્ડરની પરિસ્થિતિમાં એ લોકો સપોર્ટ કરે એવી અમારો એક હેતુ છે। જે હેતુને અનુલક્ષીને એક ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે પોલીસ કમિશનર શમશેર સિંહ સાહેબ તરફથી। ઘણા જે હથિયાર તાલીમમાં છે તે રાજકીય પરિવારના પણ કેટલાક જે જાંબુગડા છે એ લોકો રાજકીય પરિવારના પણ કેટલાક સદસ્યો આમાં ભાગ અગાઉ લઈ ચૂક્યા છે ને અત્યારે બી એ લોકો ટ્રેનિંગ કરે છે। એક બે સિવિલ હોસ્પિટલના ડૉક્ટર્સ પણ એવી તાલીમ લે છે, મહિલાઓ જે છે તમામ તાલીમ લે છે। શહેરની વિવિધ મહિલાઓ તાલીમ લઈ ચૂકી છે, લગભગ ઓછા 900 થી 1000 જેટલી મહિલાઓ હથિયારની તાલીમ લઈ ચૂકી છે અને દર અઠવાડિયે એ લોકોનો બેચ 100નો બેચ શરૂ થાય છે। તો અમે લોકો ફરી અપીલ કરીએ છીએ આપના માધ્યમથી કે જે બી મહિલાઓએ હથિયારની તાલીમ લેવી હોય તે એ લોકો હેડક્વાર્ટરમાં અને અથવા તો સી ટીમનો સંપર્ક કરે। સી ટીમનો જે નંબર છે એ નંબર પર સંપર્ક કરે અને એ લોકો તાલીમ લઈ શકે છે એક વીકની। कुछ दिनों पहले सावली के विधायक केतन इनामदार की ओर से बड़ौदा डेयरी के सत्ताधीशों पर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद बड़ौदा डेयरी के सत्ताधीश और विधायक केतन इनामदार के बीच में आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया था। हालांकि इसके बाद दोनों के बीच में सुलह हो गई थी, जिसके बाद आज
डेयरी की 64वीं वार्षिक साधारण सभा वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई थी, जिसमें सभी सभासदों की उपस्थिति रही थी। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये रही कि इस सभा में किसी भी सभासद की ओर से बड़ौदा डेयरी के सत्ताधीशों के खिलाफ कोई भी बात नहीं कही गई और साथ ही बड़ौदा डेयरी के प्रमुख दिनेश पटेल की हर बात में सहमति दर्शाई गई। साथ ही इस सभा में बड़ौदा डेयरी के दूध उत्पादन के मामलों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चाएं की गई। बस 64મી વાર્ષિક સાધારણ સભા 64મી છે આમ તો સભા, પણ દર વર્ષે આવી વાર્ષિક સાધારણ સભા વર્ષના અંતે યોજાતી રહે છે। એમાં એજન્ડાના જે કોઈ મુદ્દા હતા એ પ્રમાણે આજની વાર્ષિક સાધારણ સભા સંપન્ન થઈ છે અને વાર્ષિક સાધારણ સભામાં તમામ કામકાજ અને હિસાબ કિતાબ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે। દર વર્ષની માફક જ્યારે સાધારણ સભા ભરાય છે ત્યારે કેટલાક મિત્રોની હાજરી હોય છે। જે અમારા સંઘ સાથે સંયોજિત દૂધ મંડળીના પ્રમુખશ્રીઓ, મંત્રીશ્રીઓ વહીવટથી વાકેફ છે, આપ સૌ પણ વાકેફ છે। અમારા વાર્ષિક સાધારણ સભામાં આજના મુખ્ય 12 એજન્ડાના મુદ્દાઓ હતા। 12 મુદ્દાઓમાં અમે જે વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ રાખી હતી તો બોડેલી, ભઈકાકા હોલ, ડભોઈ અને ત્રિમંદિર અને એ સંઘમાં પણ અમુક પ્રતિનિધિઓને બોલાયા હતા। એ બધાને વારંવાર એક એક મુદ્દા ઉપર ખૂબ જ વિશેષ ચર્ચા કરી દૂધ ઉત્પાદકોના હિતમાં। આખી સાધારણ સભામાં એક પણ એવો મુદ્દો કોઈ દૂધ ઉત્પાદકોએ ઉઠાયો નહીં, ઉઠાવશે પણ નહીં। અમારું કિતાબ ખુલ્લું છે। અમુક મુદ્દાઓની જે અમારે જાહેરાત નથી થતી એ છતોય આજે કરવી પડી છે કે અમે કોઈનો ભાવફેર કાપતા નહીં અને ત્યાં કોરોનાના વર્ષમાં પણ 1 લાખ લીટર દૈનિક દૂધ ઓછું આવતું હોવા છતાં જે કિલો ફેટે આખા વર્ષનો સરેરાશ ભાવ 685 19-20માં આપ્યો હતો એ જ 20-21માં પણ અમે આ વર્ષે આપી રહ્યા છે। અમારા છેલ્લા 17 મહિનાથી સંઘનો દૂધનો ભાવ વધારો વેચાણ ભાવમાં થયેલો ન હતો અને કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં દૂધ પણ ઓછું આવ્યું તેમજ ખર્ચા પણ સામાજિક રીતે અમારે વધુ છે। દરેક દૂધ ઉત્પાદક સુધીને સેનિટાઇઝેશન, એને માસ્ક આપવાનું, એક વીકે એક નવું માસ્ક આપીએ તો પણ આખા કોરોના કાળ દરમિયાન અમે આ વિધિ સંપૂર્ણ રીતે ચલાવી છે। તદુપરાંત આ સંઘમાં છોટાઉદેપુરના વિસ્તારના લોકોનો પણ એટલો જ હક હોય। છોટાઉદેપુરમાં ઓક્સિજન પ્લાન્ટ ન હતો તો તેના કલેક્ટરશ્રી અને અધિકારીઓ સાથે મિટિંગ કરી 52,51,000 રૂપિયાનો નવો ઓક્સિજન પ્લાન્ટ આપણે ત્યાં છોટાઉદેપુર ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં મૂકી આપ્યો છે। એની સાથે સાથે એમ્બ્યુલન્સ પણ સંઘે 2 આ વર્ષે વસાઈ છે। એ અમારા દૂધ ઉત્પાદકોના ક્યારેક પણ કોઈ મુશ્કેલી પડે તો બોડેલી વિભાગની એક એમ્બ્યુલન્સ છે અને એક આપણા વડોદરા જિલ્લા ખાતે રાખવામાં પાવર પ્લાન્ટ નહીં મોટા ભાઈ, આપણે દૂધનો પાવડર પ્લાન્ટ નાખવા કરીએ છીએ। એ અત્યારે પોસાય એમ નહીં હોવાથી મને ધારું તો અમારી જે અત્યારની સ્થાનિક જે અમારી પ્રોપર્ટી છે એ જોતો અને અમારું ટર્નઓવર જોતો મને 750 કરોડ રૂપિયા લોન મળે એમ છે। પણ લોન લઈને આ કામ કરવામાં ફાયદો ના હોય, જરૂર પડશે તો વિચારશું। પણ અત્યારે અમારું એવરેજ હજુ 6 લાખ લીટર દૂધે પહોંચ્યું છે, પણ બોડેલી અને બરોડા ડેરીમાં 10 લાખ લીટર દૂધ દૈનિક આવે તો એને નિભાવવાની, સાચવવાની વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ ગઈ। પણ આ દૂધનો નિકાલ જો અમે જાતે જ પાવડર પ્લાન્ટના માધ્યમથી કરીએ તો આથી વિશેષ દૂધ ઉત્પાદકોને જે વેચાણ ભાવ તો જે દૂધનું લીટરમાં જે વેચાણ થાય છે તો જે શેરમાં થતું આવ્યું છે થાય છે, પણ વધારાનું એક્સેસ દૂધ બીજા સંઘો પર આધારિત ન રહી આપણો સંઘ વધુ પગભર થાય એના માટે અમે પાવડર પ્લાન્ટનું અંદાજિત ખર્ચ કે જે દૂધને છીનીને એનું ઘી બને, ફેટનું ઘી બને અને બાકીનું પાવડર બને એ પ્લાન્ટ બનાવવાની અમારી ઈચ્છા છે। 2025માં પાવડર પ્લાન્ટ નાખીશું। એ સિદ્ધાંત સાથે અમે વધુ દૂધ ઉત્પાદન થાય એ માટેના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે। 2009 થી 12
12 વર્ષ જે પ્રમુખ હતા નરેન્દ્રભાઈ મુખી, એમનો વહીવટ હતો. આપણે જોયું છે કે 385 લીટર દૂધ હતું, 1372 કર્મચારી હતા. આજે 6,50,000 કરતાં વધારે લીટર દૂધ આવતું હોય, 1,000 કર્મચારી છે. એ આપણો ઓન ધ રેકોર્ડ પુરાવો છે. વિશેષ નહીં કહેતા, જેને જે દેખાય એ ચાલુ રાખે. પણ કેતનભાઈની જે લાગણી હતી કે દૂધ ઉત્પાદકોને વધારે આપજો, તો 675 જ નહીં પણ 685 કિલો પેટના ભાવ ઓવરઓલ આખા વર્ષના આપણે દૂધ ઉત્પાદકોને ચૂકવી રહ્યા છીએ. હું એકલો જ વહીવટ કરું છું એવું નહીં, ટોટલ ગુજરાતના સંઘોમાં આ પ્રથા છે. મેં તમને સ્પષ્ટ કીધું કે 2015માં એબેટમેન્ટ આવ્યું છે, એટલે ભાવફેરની રકમ રૂપ આપી શકાય એવી પરિસ્થિતિ જ નહીં. એટલે એડવાન્સમાં આખા વર્ષનો ભાવ જાહેર કરતા હોય અંદાજે, અને વર્ષના અંતે આપણે જે દૂધ મંડળીઓને પૈસા આપતા હોય છે. એ મુદ્દાની આખી વાત છે. આજે નહોતી કહેવી, તેમ છતાંય તમને કહું છું કે ગુજરાતના અમૂલ સાથે સંકળાયેલા તમામ સંઘોની આ પ્રક્રિયાથી કામ કરી રહ્યા હોય ત્યારે આમાં આપણે કંઈ ખોટું કર્યું નહીં ને ખોટું કરવા માગતા નહીં, ભવિષ્યમાં ખોટું કરશું. गणेश महोत्सव की स्थापना को अब 6 दिन हो चुके हैं और मंडलों की ओर से गणेश जी का विसर्जन भी किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस की ओर से भी विसर्जन को लेकर शहर में सभी तैयारियां पूर्ण कर दी गई है और पुलिस की ओर से विसर्जन की कई गाइडलाइंस भी घोषित की गई है। इसके साथ ही घोषणा पत्र भी जारी किया गया है, जिसके तहत ही विसर्जन करने की सूचनाएं मंडलों को दे दी गई है। ऐसे में इस बारे में एसीपी मेघा तेवार की ओर से ज़्यादा जानकारी दी गई है। ગણેશોત્સવ નિમિત્તે 7મા અને 10મા દિવસે પણ બંદોબસ્ત રાખવામાં આવેલ છે બરોડા શહેર પોલીસ તરફથી. અને અત્રે રાવપુરા નવાપુરા વિસ્તારમાં જે ગણપતિ છે એમાંથી કેટલાક લોકો નવલખી કૃત્રિમ તળાવ ખાતે આવવાના છે તે બાબતની તેઓએ અરજી કરેલ છે. અને જે નોટિફિકેશનમાં જણાવેલ છે એ તમામ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું અને અન્ય રૂલ્સનું પાલન કરીને તેઓએ પ્રોસેશન કાઢવું હશે તો એ પ્રમાણે રહેશે. અને એમાં પણ જે જરૂરી નિયમો પાલન કર્યા બાદ તેઓએ નવલખી ખાતે આવવાનું રહેશે. મૂર્તિની હાઇટ, માણસોની સંખ્યા એ બાબતે જરૂરી સૂચના તેઓને આપવામાં આવેલી. शहर के सावंत परिवार की ओर से बीते 100 सालों से महाराष्ट्रीयन परंपरा के मुताबिक गणेश जी की स्थापना की जाती है। इस साल भी सावंत परिवार की ओर से इको फ्रेंडली गणेश जी की स्थापना की गई है। शहर के शियाबाग इलाके में रहने वाले सावंत परिवार के सभ्य महाराष्ट्रीयन परंपरा के मुताबिक बीते 100 सालों से गणेश जी की स्थापना करते हैं। इस साल भी बाप्पा की इको फ्रेंडली प्रतिमा की स्थापना सावंत परिवार की ओर से की गई है और इस साल गांव की थीम पर डेकोरेशन भी किया गया है। दरअसल कोरोना महामारी में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और ख़ासकर ऑक्सीजन की समस्या लोगों को परेशान करती रही, क्योंकि अब लोग गांव से शहर में आ गए हैं और लोगों ने कंक्रीट के जंगलों का निर्माण किया है। ऐसे में अच्छा जीवन जीने के लिए गांव को बचाना ज़रूरी है। उसी आशय से गांव की थीम पर गणेश जी का डेकोरेशन सावंत परिवार की ओर से किया गया है, जिसमें गांव की हर चीज़ दर्शाई गई है। અમારા આમ તો લગભગ 5 થી 7 પેઢીના ગણપતિ છે. પેઢીને પેઢી પરંપરા મુજબ આ ગણપતિ છે. આ વખતે અમે છે ને ગામડાનું ડેકોરેશન કર્યું છે. એનું કારણ મુખ્ય છે કે જ્યારે કોરોનાનો બીજો ફેસ આવ્યો ત્યારે લોકોને ઓક્સિજનની, વૃક્ષ શું છે એની જરૂર ખબર પડી કે ભાઈ વૃક્ષો કેમ હોવા જોઈએ અને ગામડા કેમ હોવા જોઈએ. આપણે હાલ જે પરિસ્થિતિ ચાલે છે એમાં એવું છે કે ભાઈ લોકો ગામડાઓને હટાવીને કોન્ક્રીટનું જંગલ ઊભું કરી રહ્યા છે. એક શહેર જ બધે શહેરનું નિર્માણ થયું છે, પણ આપણે
એ ના થવું જોઈએ અને ગામડાનું પણ એટલો જ વિકાસ થવો જોઈએ, કેમ કે આપણાને જેટલી શહેરની જરૂર છે એટલી જ ગામડાની જરૂર છે. તેને લઈને અમે આખા એક ગામડાની એટલે ગોકુળના ગામ જેવી થીમ ઊભી કરી છે કે તેમાં બધું જ નેચરલ છે. બધી જ વસ્તુઓ માટી અને જે પાના છે વૃક્ષના, એ પાનાથી જ બધું બનાવવામાં આવેલું છે. સરકારની આમ તો ગાઈડલાઇન જે પણ પાડેલી છે હાલ એ આપણા માટે જ છે કે પછી એવું ના થાય કે હાથી નીકળી જાય અને પૂંછડા માટે પાછો કોરોના આવે. એટલે સરકારની જેટલા પણ નિયમો છે આપણે પાળવા જોઈએ અને ઘરમાં જ વિસર્જન કરવું જોઈએ. आज भादरवा सूद नोम है। ऐसे में श्री पांचगाम श्रीमाली सोनी समाज की ओर से हर साल की परंपरा के मुताबिक डभोई दशालाड़ भवन पर महालक्ष्मी माताजी की पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा में सोनी समाज के मर्यादित लोगों की कोरोना गाइडलाइंस के तहत उपस्थिति रही। રાબેતા મુજબ આ વર્ષે પણ અખો નોમની ઉજાણી મર્યાદિત સંખ્યામાં સભ્યોની હાજરીમાં રંગે વિદ્વાન બ્રાહ્મણોની હાજરીમાં સંપન્ન કરવામાં આવી રહી છે। 5 મનોરથી છે અને તેના સગાવાલા અને ખૂબ જ વિવિધ સંખ્યામાં શીતબદ્ધ રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને સૌ જ્ઞાતિજનોને પણ દર્શનનો લાભ મળે એ હેતુથી શ્રીફળ ઓપવાના સમયે અને હવનના દર્શન કરવા માટે સાંજે 4 થી 6 માં સૌ જ્ઞાતિજનોને પધારવા આમંત્રણ છે। महालक्ष्मी माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। बीते कई दिनों से लगातार बरस रही बारिश के चलते जूनागढ़ जिले में हर जगह पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है और पानी की वजह से वहां काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। अब इस मामले प्रशासन की ओर से तहकीकात की जा रही है और ये जानने की कोशिश भी हो रही है कि आखिर जूनागढ़ में हुई बारिश के चलते कितना नुकसान जूनागढ़ जिले के लोगों को सहना पड़ा है। लगातार 3 दिनों तक जूनागढ़ में बारिश बरसने के बाद अब आखिरकार बारिश बंद हुई है, लेकिन 100% से भी ज़्यादा बारिश जूनागढ़ जिले में दर्ज की गई है, जिसकी वजह से वहां के सभी डैम पानी से पूरी तरह से भर चुके हैं। वैसे इस वक्त जूनागढ़ के जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो साफ दिखाते हैं कि हर जगह पानी ही पानी है। कई इलाकों में ज़्यादा बारिश की वजह से फसलों को भी नुकसान हुआ है। वहीं नदी और कॉजवे से आने जाने वाले वाहन पानी में बह जाने या डूब जाने की वजह से कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई है। इस तरह बारिश की वजह से जूनागढ़ में काफ़ी नुकसान की खबरें प्राप्त हो रही है, लेकिन अब प्रशासन की ओर से इस मामले में ज़्यादा जानकारी बटोरकर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जूनागढ़ में अब तक कितना नुकसान हुआ है। काड़ू भाई आओ। जूनागढ़ जिले के कई गांवों में बारिश की वजह से पानी भर जाने के दृश्य देखने मिले हैं। ऐसे में जूनागढ़ के वंथली और आसपास के कई गांवों के लोगों को रेस्क्यू कर सलामत जगह पर पहुंचा दिया गया है। जूनागढ़ के वंथली के कणजा गांव जूनागढ़ सोमनाथ हाईवे पर झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को सलामत जगह पर प्रशासन की ओर से हटा लिया गया है। इसके अलावा वंथली के वेगड़ी गांव में भी फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। वंथली के कंजा फाटक के पास झोपड़ों में रहने वाले लोगों के झोपड़ों में पानी भर जाने की वजह से उन लोगों को भी सलामत जगहों पर हटा दिया गया है। वहीं एनडीआरएफ की टीम की ओर से फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जो भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वहां से बाहर निकालकर खाने पीने की सुविधाएं मुहैया करवाने का आश्वासन भी प्रशासन की ओर से दिया गया है। 8 વાગ્યા સુધી પાણી અમારા ઝૂંપડામાં ફરી વળ્યું હતું, બરાબર।
ને તંત્રવાળાએ આવી ગયા હતા એ છતાંય અમે અત્યારે હોટલમાં છીએ બરાબર રોડના કાંઠા ઉપર સોમનાથ હોટલની બાજુમાં હરેશભાઈ હીરાભાઈ દુધુકિયાની હોટલમાં બરાબર અમારો 150 માણસનો કુટુંબ મીર સમાજનો અહીંયા બધી અત્યારે રહે છે। કયા વિસ્તારમાં પાણી ઘેરાય છે? કણજાધાર સોમનાથ જુનાગઢ હાઈવે રોડ ઉપર દર વર્ષે એવું થાય છે? દર વર્ષે અમુક ટાણે આવી જાય છે સાહેબને પાણી। અમુક ટાણે 6 વર્ષ પહેલાં આવ્યું હતું પાણી, પછી 2008માં પાણી આવ્યું હતું, એ તો વધારે આવ્યું હતું। આજ પહેલાં આવ્યું પણ અમારો અનાજ ને જે ખાવા પીવાની વસ્તુની બધી છે એ અમારી નુકસાની છે, બીજું શું કરીએ, જીવ બચી ગયા हमारा। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटी से सज्ज 150 रूम्स। कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। कॉन्टैक्ट नंबर 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शहर की स्वामी विवेकानंद प्राथमिक विद्यालय की ओर से छात्रों को पढ़ाने के लिए एक अनोखे तरीके को शुरू करवाया गया है। दरअसल इस स्कूल के जरिए सोलार पैनल से और अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्ज एक बस में कक्षा तैयार करवाई गई है, जिसके जरिए इस वक्त छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना की वजह से पिछले 1.5 साल से भी अधिक समय से स्कूल बंद है, जिससे छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दी जा रही थी। वैसे अब छात्रों को ऑफलाइन माध्यम से शिक्षा देने की अनुमति दी जा चुकी है। ऐसे में शिक्षा समिति के बच्चे सोलार बस में शिक्षा प्राप्त कर वास्तविक शिक्षा का अनुभव कर रहे हैं। दरअसल शहर की स्वामी विवेकानंद प्राथमिक स्कूल के छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से भरपूर बस तैयार करवाई गई है। बस में कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रोजेक्टर और ऐसी कई अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद है। गाइडलाइंस का पालन करते हुए पाथुजी नगर, सोनिया नगर, बूढ़ा के मकान, राजीव नगर, दर्जीपुरा, स्वात क्वार्टर्स और वंजारा हिल समेत कई जगहों के 348 से भी अधिक बच्चों को इस बस के जरिए शिक्षा दी जा रही है। इस नए दृष्टिकोण को छात्रों और अभिभावकों से भी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। वैसे आपको बता दें कि इस स्कूल की ओर से ये कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। 2 साल तक कमेटी स्कूल के छात्रों को सोलार बस में अलग अलग समय पर पढ़ाती थी। कोरोना में बस के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा भी दी गई। हाल ही में सरकार ने फिर से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की है, तो ऐसे में सोलार बस में बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो पाई है। बीते 2 महीनों से छात्र इसी बस में पढ़ाई कर रहे हैं। विभिन्न वीडियो दिखाकर यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। छात्रों को कंप्यूटर का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है और बस में प्रोजेक्टर स्क्रीन भी मौजूद है, जिसके इस्तेमाल से शिक्षक छात्रों को पढ़ा पाते हैं। सर, हमने ये जो प्रोजेक्ट दिया है तो हमने कभी दिनों से सोचा था कि बच्चों स्कूल में आ नहीं रहे। 1 से 5 कक्षा के बच्चे तो स्कूल में आते नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। बच्चे भी अभी घर पे रह के वैसे परेशान हो गए हैं, उसके पेरेंट्स भी परेशान है कि हम क्या करें, बच्चों को कैसे पढ़ाएं। जो अभी तो शिक्षा विभाग से जो सूचना मिली है कि होम लर्निंग चलाओ, माइक्रोसॉफ्ट टीम से पढ़ाओ, लेकिन सब बच्चों के पास ऐसा, सब पेरेंट्स के पास ऐसा मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन। तो हमने ऐसा सोचा कि हम क्यों ऐसी बस की ढूंढ नहीं करें
कि बस में बच्चों को बिठाए तो टीचर और बच्चे दोनों प्रत्यक्ष शिक्षण मिले। तो इसीलिए हमने ऐसा सोचा कि ऐसा होना चाहिए। तो हमारी सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे शिक्षण विभाग गुजरात राज्य के शिक्षण सचिव डॉक्टर विनोद राव साहब के साथ। तो राव साहब के सामने हमारा जो नगर प्राथमिक शिक्षण समिति का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है धर्मेंद्र सिंह चुडासमा, उन्होंने हमको बताया कि दिलीप भाई ऐसा कुछ नया करो, जो लोग कर रहे हैं उससे अलग करो। जो बच्चे पढ़ा रहे गुजरात की प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक को पढ़ा रहे बच्चों को, वो ठीक है, एरिया में जाते हैं, गांव में जाते हैं, गांव में बुलाते हैं और बच्चों को बिठाते हैं, लेकिन बच्चों को जो मजा आती है ऐसा कुछ करना। इसमें जो बस में वो शिक्षा मिल दे रहे, तो पहले हमारा 6 से 8 का बच्चा था, जब तो स्कूल में नहीं आता था, तो वो 6 से 8 का जो बच्चा है वो बच्चा अलग अलग एरिया से है, तो अलग अलग एरिया में वो मैथ, साइंस, सोशल साइंस, गुजराती, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश ये सब्जेक्ट वो पढ़ता था। अभी वो 6 से 8 वाला स्कूल में आने लगा। दोपहर के बाद यानी 9:30-10 बजे के बाद हर रोज हमारा 3 से 5 या तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक का बच्चा वो बस में पढ़ता है। अभी बच्चा पहली और दूसरी कक्षा वाला जो बच्चा है वो टीचर और हमारा जो ग्रुप बनाया है वो FLN चला रहा है बच्चों के एरिया में, बच्चों के घर पे जाके। तो अभी जो हमारे बच्चा पढ़ रहा है वो 3 से 5 तक का बच्चा सब सब्जेक्ट जो है तो हमारे यहाँ टास्क पद्धति चल रही है, तो वही हिसाब से गुजराती, पर्यावरण और मैथ्स वो बच्चे को टीचर पढ़ा रहे हैं। सर बस हमने टोटल सोलार बनाई है, सोलर सिस्टम से चल रही है, और बस में टोटल AC है, इंटरनेट कनेक्टेड है। इसमें बहुत बड़ा एक प्रोजेक्टर रखा है, स्क्रीन रखा है, और 19 जैसा हमने बच्चों को बैठने के लिए वो कंप्यूटर के साथ एक सीट रखी है। तो कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को ज्यादा नहीं इकट्ठे कर सकते। अभी तो वैसे बड़ौदा में कम से कम केस आ रहे हैं, अभी अच्छा है, कोई कोरोना का मोड नहीं चल रहा है, लेकिन हमने 2 महीने पहले से स्टार्ट किया है। लोगों का जो बच्चा हमारे स्कूल का नहीं है, उसके जो पेरेंट्स है उसको ऐसा है कि ये कौन सी स्कूल है कि ये कार्य ऐसा कर रही है। तो वो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं तो हमको टीचर्स को पूछने आते हैं, मैडम हमारे बच्चे को बिठाओ ने, हमारे बच्चे को शिक्षा दो ने। तो हमारे टीचर क्या बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, हमारे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, आप देखिए हमारे स्कूल में क्या है। हमारे पास स्कूल में 4 ज्ञानकुंज का प्रोजेक्ट है, जैसे हम उसी तरीके से उसको पढ़ा रहे। स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट लैब है, लेबोरेटरी, और उसके साथ हमारे पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी भी है। अकोटा इलाके के सुनमुन पार्क में रहने वाले गांधी परिवार की ओर से अनोखे तरीके से बाप्पा का विसर्जन किया गया, जिसे देखने के लिए वहां आसपास के लोग भी उमड़ पड़े। कल गणेश महोत्सव का 5वां दिन था और 5वें दिन पर कई भक्तों ने गणेश जी का विसर्जन किया। अकोटा इलाके में सुनमुन पार्क में गांधी परिवार की ओर से भी बाप्पा का अनोखा विसर्जन किया गया। दरअसल इस परिवार की ओर से गणेश जी को बग्गी में रखकर पूरे इलाके में घुमाया गया और ढोल नगारे बजाकर पटाखे भी जलाए गए, जिसे देखने के लिए आसपास के लोग भी उमड़ पड़े थे। इस इलाके में बग्गी पर गणेश जी को घुमाकर फिर बाप्पा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में भक्तों की भी उपस्थिति रही।
श्री समस्त पांच गांव सोनी समाज की ओर से हर साल परंपरा के मुताबिक महालक्ष्मी की पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। इस साल भी प्रतापनगर दालियावाड़ी में परंपरा के मुताबिक ही महालक्ष्मी की पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस के तहत सोनी समाज के मर्यादित लोगों की उपस्थिति रही। पानी चमकी बंगला भगवान होते जन्मादाय और माता जी ने अपने फल अर्पण करवा पड़े। गंगे लाऊ नारायण जो नारायण की माता जी अति प्रिय, लीलू नारियल माता जी अति प्रिय, पजी पड़े माता जी जय सोमनारायण। पादरा का हिंदू एकता ग्रुप हर साल गणेश जी की स्थापना करता है। इस साल भी हिंदू एकता ग्रुप की ओर से गणेश जी की स्थापना करवाई गई थी और 5वें दिन गणेश जी का विधिवत तरीके से विसर्जन भी कर दिया गया। पादरा में हिंदू एकता ग्रुप की ओर से श्री जी की हर साल स्थापना की जाती है। विभिन्न तरह के डेकोरेशन और लाइटिंग के तहत श्री जी का भव्य स्वागत किया जाता है। इस साल भी हिंदू एकता ग्रुप ने गणेश जी की स्थापना की थी और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया था। इसके साथ ही गाइडलाइंस के तहत ही गणेश जी के दर्शन की अनुमति भी लोगों को दी जा रही थी। वहीं हिंदू एकता ग्रुप की ओर से 108 दिए की भव्य आरती भी की गई थी, जिसके बाद 5वें दिन कल वहीं पर गणेश जी का विसर्जन कर दिया गया, जिसमें बड़ी तादाद में भक्त और विभिन्न संगठन भी जुड़े। जय सियाराम, जय गणेश। आज रोज हिंदू एकता पादरा गणेश वर्ष 1 आज रोज हिंदू एकता पादरा गणेश उत्सवना गणपति दादाનું વિસર્જન છે। 5 દિવસના ગણપતિ દાદાની અમે સ્થાપના કરી હતી। તમામ ભાવિ ભક્તોએ ખૂબ સારી રીતે સેવા કરી હતી ને આજ રોજ ગણપતિ દાદાનું વિસર્જન છે। હું તમામ ભાવિ ભક્તોનો અને પાદરાના તમામ જનતાનો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે જે આજે વિસર્જનના દિવસે અમારી જોડે જોડાયા અને ગણપતિ દાદાને ભાવપૂર્વક વિદાય આપીશું અને વિસર્જન કરીને વિદાય।
जाफराबाद के कलेक्टर को समुंदर में 2 बोट गुम होने की जानकारी मिली थी, लेकिन अब आखिरकार दोनों बोट को प्रशासन की ओर से ढूंढ निकाला गया है और उस बोट में फंसे हुए लोगों को भी बचा लिया गया है। जाफराबाद के कलेक्टर को आज सुबह ही समुंदर में 2 बोट गुम होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद इस मामले प्रशासन तुरंत ही हरकत में आ गया और जाफराबाद शियालपेट के समुंदर में फंसी हुई 2 बोट समेत मछुआरों को सलामत तरीके से बचा लिया गया। शिव शक्ति बोट और जय मोगल बोट, इस तरह की 2 बोट समुंदर में फंसी हुई थी, जिसमें कई लोग भी बोट के साथ फंसे हुए थे। दरअसल दोनों बोट के इंजन बंद पड़ जाने से ये बोट फंस गई थी, लेकिन जय मोगल नाम की बोट को अन्य बोट के साथ टो कर जाफराबाद वापस लाया गया, जबकि शिव शक्ति बोट फैजाबाद से 60 नॉटिकल माइल दूर थी। उसे दमन के कोस्ट गार्ड की ओर से रेस्क्यू कर लिया गया। हेलीकॉप्टर की ओर से ढूंढे जाने के बाद ये दोनों बोट प्राप्त हुई, जिसके बाद यहां फंसे लोगों को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई। ये रिपोर्ट जाफराबाद से हमारे संवाददाता बाबूभाई भाटेन ने भेजी है। बात एम के सवार में माननीय कलेक्टर साहब ने जाफराबाद दरिया में 2 बोट गुम थया अथवा तो दरिया में क्या अदृश्य थया अंगेना समाचारों मळ्या, जेमना अनुसंधाने तात्कालिक माननीय कलेक्टर साहेबे कोस्टगार्ड साथे टाइप कर्युं, जरूरी सूचनाओं आपी અને રેસ્ક્યુ કે સલામતીની કામગીરી હાથ ધરવા માટે જ્યારે સાહેબે સૂચના આપી, છેલ્લા સમાચાર મુજબ કુલ 2 બોટ હતી। એક બોટનું નામ જય મોગલ હતું અને એક બોટનું નામ છે શિવશક્તિ હતું। જય મોગલ બોટ છે એમની નોંધણી ભાવનગર ખાતે થયેલી છે, પણ કોઈ શિયાળબેટના વ્યક્તિ છે એમને એ બોટ ખરીદેલી છે અને શિવશક્તિ નામની બોટ છે એ જાફરાબાદની બોટ છે। शिवशक्ति नामनी बोट में 6 खलासीओ सवार था मित्रों, और मोगल नाम जय मोगल जो बोट थी एम 8 खलासीओ सवार था। छेल्ला समाचार मारे हमें एसडीएम साथ कोस्टगार्ड साथ बात थया मुजब बंने बोट है एमना खलासीओ ने बचावनी कामगीरी पूर्ण थई है, एटले कि जय मोगल नामनी बोट है एमने नसीब नामनी बोट द्वारा टॉइंग करी जाफराबाद दरिया किनारे लाववामां आवी रही है और जाफराबाद दरिया में अत्यारे लगभग अंदाजे 20 नॉटिकल माइल दूर है और एमना 8 खलासीओ है सलामत है। बीजी बोट जो शिवशक्ति बोट है ये लगभग जाफराबाद में 60 नॉटिकल माइल दूर थी। दमन कोस्ट गार्डे एमने रेस्क्यू कर्या हेलिकॉप्टर द्वारा, पण जरूर न पड़ी हेलिकॉप्टर रेस्क्यू करवानी, पण त्या बीजी एक मर्चंट शिप दरिया में हती, एटले कि एमना जे खलासीओ हता शिवशक्तिना ए 6 खलासीओने ए लोकोए मर्चंट शिप में शिफ्ट कर्या, एटले कि ए 6 खलासीओ पण सलामत है और ये जे शिवशक्ति बोट हती एमने कोस्टगार्ड द्वारा दमण तरफ लई जवानी कार्यवाही हाथ धरवामां आवी छे। आम बंने बोटना तमाम खलासीओ छे ए सलामत छे। अत्यारे आटली हकीकत। मांजलपुर इलाके की मारुति धाम सोसाइटी में रहने वाले मालूसरे परिवार की ओर से हर साल विधिवत तरीके से बाप्पा की स्थापना करवाई जाती है। इस साल भी महाराष्ट्रीयन परंपरा के साथ एक अनोखा संदेश देते हुए मालूसरे परिवार की ओर से गणेश जी की स्थापना की गई है। शहर के मालूसरे परिवार की ओर से हर साल विभिन्न तरह के डेकोरेशन के तहत गणेश उत्सव को मनाया जाता है। हर साल अलग अलग थीम रखकर समाज को एक अच्छा संदेशा देने की कोशिश इस परिवार की ओर से की जाती है। महाराष्ट्रीयन परंपरा से हर साल ये परिवार 5 दिन तक गणेश जी की पूजा अर्चना करता है और डेकोरेशन की थीम तय करने के लिए भी परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर सर्वसम्मति से फैसला लेते हैं। गणेश महोत्सव के 1 महीने पहले से ही मालूसरे परिवार के सभी लोग महोत्सव की तैयारियों में जुट जाते हैं। 5वें दिन महाराष्ट्रीयन भाषा में की जाती बाप्पा की आरती अलग ही भक्तिमय माहौल खड़ा करती है, जो वहाँ के आसपास के निवासी भी देखने के लिए पहुँचते हैं। इस साल भारत में हिंद स्वराज्य की स्थापना करने वाले श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की झांकी करवाने वाली थीम पर मालूसरे परिवार की ओर से गणेश महोत्सव की सजावट की गई है। ઘણા વર્ષોથી ગણપતિ બેસાડીએ છીએ। દર વર્ષે ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિની સ્થાપના કરીએ છીએ, વિવિધ પ્રકારનું ડેકોરેશન કરીએ છીએ। હિન્દુ ધર્મરક્ષક છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના જીવન ઉપર ડેકોરેશન કરેલ છે। આજના બાળકોને પ્રેરણા અને જ્ઞાન મળે તે હેતુથી સદર ડેકોરેશન કરેલ છે। પાણી બગાડો નહીં, ગણપતિ ઇકો ફ્રેન્ડલી જ કરો, લાવો અને સ્થાપના કરો અને પોતાના બાળકોને
આપણા ધર્મનું જ્ઞાન આપો। शहर के आइकोनिया सलून की ओर से ग्राहकों के लिए विभिन्न तरह की नई नई सुविधाएं लाई जाती है। ऐसे ही इस सलून में अब फ्रेंच बालियाज हेयर कलेक्शन को लॉन्च किया गया है। जिस तरह फैशन इंडस्ट्रीज़ में डिज़ाइनर कलेक्शन आते हैं, उसी तरह सलून इंडस्ट्रीज़ में भी जाने माने ब्रांड की ओर से हेयर कलर कलेक्शन लॉन्च किया जाता है। उसी के तहत शहर के आइकोनिया और ब्यूटी मंत्रा सलून में फ्रेंच बालियाज हेयर कलेक्शन लॉन्च किया गया है। फ्रेंच बालियाज विश्व की प्रसिद्ध लॉरियल प्रोफेशनल कंपनी की ओर से बनाई गई कलर टेक्निक है। लॉरियल की ओर से अपने ट्रेनर्स को भेजकर आइकोनिया और ब्यूटी मंत्रा सलून की टीम को ट्रेन किया गया है और उसी के आधार पर अब ग्राहकों पर अब ये नई कलर टेक्निक ट्राई की जाएगी। इस बारे में सलून की ओनर बीजल ઝવેરી શાહ की ओर से ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाई गई है। બેસિકલી આઇકોનિયા સલોન તરફથી અમે લોકોએ હેર કલર કલેક્શન લોન્ચ કર્યું છે। સો નોર્મલી બધા ડિઝાઇનર્સ પોતાના ક્લોથ્સના કલેક્શન લોન્ચ કરતા હોય છે, વિચ ઇઝ પ્રોબેબલી જેમ સિઝન આવી એવી રીતના વિન્ટરનું હોય, સમરનું હોય। સો એવી રીતના હેર કલરના પણ વર્લ્ડ વાઇડ એવા ટ્રેન્ડ્સ આવતા હોય। સો એમાં લોરિયલ પ્રોફેશનલ બહુ જ આગળ છે અને એ લોકો ઇન્ડિયન સ્કિન પ્રમાણેના એ લોકોના કલર કલેક્શન્સ બહુ સરસ લોન્ચ કરતા હોય છે। સો આ વખતનું જે હતું એ સ્પેસિફિકલી આપણી સ્કિન ટોન માટે ઇટ વોઝ ગોઈંગ ઓન વેરી વેલ, પ્લસ આપણે ત્યાં લોકો એ ઇઝીલી કેરી કરી શકે એવું લુક છે। સો અમે લોકો એવું વિચાર્યું કે વી વિલ ટેક ધેર ગાઈડન્સ અને અમે લોકોએ મોડલ્સ, ઇન્ફ્લુઅન્સર્સ અને એક્ટર્સને ઇન્વાઇટ કર્યા, એ લોકોનું હેર મેકઓવર કર્યું અહીંયા આગળ અને લોરિયલ પ્રોફેશનલ ટીમના એ લોકોના મેઇન જે ટ્રેનર્સ છે, એડ્યુકેટર્સ છે અને હુ આર હેન્ડલિંગ ધ ઝોન, એ લોકોએ આવીને એમના પર્સનલ ગાઈડન્સમાં અમારી ટીમને બ્યુટી મંત્રા અને આઇકોનિયા બંનેની ટીમને ટ્રેન કરી। યા સો ઇન ધેટ વે ફાઇનલી વી આર લોન્ચિંગ અવર ફ્રેન્ચ બાલિયાજ હેર કલર કલેક્શન વિચ ઇઝ બીન ડન ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન બરોડા। મેડમ આ જે કલરનો જે તમે અહીંયા રેટ શું રાખવામાં આવ્યો છે અને કઈ રીતે હોય? સો આ કલરના રેટ્સમાં એકચ્યુઅલી લેન્થ અને ગ્રોથ પર વેરી કરતા હોય છે। સો વી આર સ્ટીલ વર્કિંગ ઓન ધેન પાર્ટ, પણ અમે લોકો જલ્દી જ આમાં નવી ઓફર લઈને આવીશું। સો આજે જે અમે ટેકનિક લોન્ચ કરી સ્પેશિયલી બ્યુટી મંત્રા અને આઇકોનિયા સલોનમાં, એ ટેકનિકનું નામ છે ફ્રેન્ચ બાલિયાજ। આ એક યુનિક ટેકનિક છે જે દરેક ફિમેલ પોતાના હેરમાં ટેકનિકથી કલર કરાવી શકે છે। ધ બેનિફિટ એનું એ છે કે આ નેચરલ લુકિંગ ટેકનિક છે, મતલબ કોઈ બી ઇન્ડિયન ફિમેલ ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં, ઇન્ડિયન સોસાયટી સાથે આ ટેકનિક કેરી કરી શકે છે। યંગ હોય, હાઉસવાઇફ હોય, વર્કિંગ વુમન હોય, કોઈ બી ફિમેલ હોય, આ ટેકનિક પોતાના વાળમાં કરાવી શકે છે। અને અમે લોકો સલોનને સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ પહેલાં, અને ટ્રેન્ડ સ્ટાફ તમારા વાળમાં આ ટેકનિક કરે છે। ધેર ઇઝ નો હાર્મ, તમારી ક્વોલિટી મેન્ટેન રહે છે, તમારા વાળને એક નવું લુક મળે છે અને આ એક ફિમેલનો કોન્ફિડન્સ વધારવાવાળી ટેકનિક છે। સો મારું એવું છે કે બરોડાના દરેકે દરેક ફિમેલ સલોનમાં જાય અને ફ્રેન્ચ બાલિયાજ ટેકનિક યુઝ કરે, બિકોઝ આમાં કોઈ નવી પ્રોડક્ટ નથી, બટ હેર ડ્રેસરની એક્સપર્ટીઝ છે। જેમ એક માસ્ટર ડૉક્ટર હોય છે અને કેવી રીતે ટ્રીટમેન્ટ આપે છે, એવી રીતે એક એક્સપર્ટ હેર ડ્રેસર એક ફિમેલને નવું લુક આપે છે અને એને કોઈ એક્સ્ટ્રા પૈસા બી ખર્ચા નથી કરવાના, કોઈ એક્સપેન્સિવ વસ્તુ નથી, બહુ કોમન પ્રાઇઝમાં આ ટેકનિક એ કરાવી શકે છે। સો એ આજે અમે આઇકોનિયા અને બ્યુટી મંત્રા સલોનમાં લોન્ચ કરી અને તમે લોકો ઓલરેડી मॉडल्स જોઈ છે। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शहर में बीमारियों पर काबू पाने के लिए बुलाई गई तत्कालीन बैठक, मेयर केयूर रोकड़िया की अगुवाई में अधिकारियों को दी गई सूचनाएं। बरोडा डेयरी की 64वीं साधारण सभा हुई वर्चुअली आयोजित, सभासदों ने मंडली के हर फैसले में दिखाई सहमति। 17 सितंबर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर में किया जाएगा फ्लैग मार्च का आयोजन। शहर पुलिस, शी टीम, ट्रैफिक, महिला पुलिस और राइफल क्लब की महिलाएं करेंगी फ्लैग मार्च। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।